Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from KBCRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to extend the topic, and you can remember that in last class I suggested to do an activity, and some of you did the activity, but some of you did not. So I would like to again to suggest the activity, and I will explain the activity, how and in what way you you can do the activity. Here you can see, do this and find out. That means you have to do in your on the basis of your own observation. So this is your work. This have to be done by you. So this one you can do in group with your nearby friends or your elder brothers or sisters. So here you can see the instruction. Do this experiment in groups of 4 friends. You can take you can make pair of groups, and each group will need a big pot filled with water just like this. And this may be large faced or open faced uh, container, and that will be full of water. And with the water you will do the experiments, and that one will be your activity. So you have to put you have to at first you have to take some things, uh, such as here you can see the list, all these things to be put in the water. All these things you have to collect, you have to take at first, and you have to take a water container, and it will be this one will be filled with water. तो आपको सबसे पहले एक कंटेनर लेना चाहिए बड़ा सा, और उसको पानी से भर देना चाहिए। और उसके बाद कुछ चीज़ें आपको कलेक्ट करनी चाहिए जो कि आप पानी में पुट करने वाले हैं, जैसे थिंग्स टू बी पुट इन वाटर। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे एम्प्टी बॉल, खाली कटोरी। आफ्टर पुटिंग इन 6 or 7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1, 2 आयरन नेल और पिन, मैच स्टिक्स। ये सारा चीज़ जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं, आपके घर में उपलब्ध होंगे। तो आप ये सारे चीज़ के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एट फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट these थिंग्स. If not possible, you can collect some other things also, and you have to put one by one all these things, and you have to get the idea. You have to observe the incident, and according to the incident, according to the experiment with water, you will put the data, you will put the information here. You have to make just like this a table, and this table will be filled by you. So here you can see the point is things to be put in water. Next one is I guessed before I did it. ये आपको पहले गेस करना है, अनुमान लगाना है कि हम तो आपको जो चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे वाटर के ऊपर डालने के लिए, उसको पुट करने से पहले आपको गेस करना है कि ये डूब जाएगा या फिर फ्लोट होगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, you will put the information. Here you can see that one, this one, here you can see this one, I guess before I did it. It will be before doing the experiment. And here you can see I saw when I did it. This will be after experiment or after observation. So you have to make a table just like this, and the points will be things to be put in water. Next one,
I guessed before I did it and I saw when I did it। तो आपको पहले कुछ चीज़ें जुगाड़ करना है, उसके बाद आपको एक बकेट या फिर एक कुछ भी कंटेनर पानी का जहाँ ज़्यादा पानी कंटेन कर सकें और उसको पानी से भर देना है। उसके बाद एक एक चीज़ आपको उसमें पुट करना है और पुट करने से पहले आपको गेस करना है कि डूब जाएगा या फ्लोट होगा। और गेस करने से जो आपको लगेगा वो आप यहाँ लिखोगे। यहाँ आप देख सकते हैं आई गेस्ड बिफोर आई डिड इट, इसके नीचे जो ये बॉक्सेस है इसमें लिखेंगे। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट मतलब जब आप देख लोगे कि हाँ क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है या फिर डूब जा रहा है, तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो आप देखोगे उसके हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखोगे। आई सॉ व्हेन आई डिड इट। तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन लास्ट वाला कॉलम जो है, और सेकेंड वाला कॉलम में आप ऑब्जर्वेशन से पहले, एक्सपेरिमेंट से पहले आपको क्या लगता होगा कि डूब जाएगा फ्लोट होगा, उसको लिखना है। और सारा चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और इसमें एक थ्योरी है जिस थ्योरी के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल पिछला क्लास में भी यही सजेस्ट किया था, लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं किए ये एक्सपेरिमेंट। आज आपको ये मस्ट है, इट मस्ट बी डन। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन लर्न मोर देन रीडिंग और नॉर्मल स्टडी सिस्टम। आपका जो नॉर्मल अध्ययन का पद्धति होते हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं तो आप करके सीख सकते हैं। और इस मामले में ये एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी बहुत ही काम मतलब अच्छा होता है। तो आप इस एक्टिविटी को अच्छा से करेंगे। आई होप यू विल डू इट एंड you will reply me with your experiment। This table will be filled by you and your experiments photo, that means you will pick some photocopy of your experiment, of your activity, and you will put the photo, put the pictures in the proper group. And I think you will put the information on the table that was one recently explained। तो आपको ये टेबल बना करके ये सारे चीज़ को आपको खुद उस पर पुट करके वाटर के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है उसको गेस करना है। और आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपको देखना है कि हाँ ये फ्लोट कर रहा है, हाँ ये सिंक हो जा रहा है। तो ये चीज़ आपको करके आज ग्रुप में डालना है। और आगे हम इसका कारण के बारे में समझेंगे कि क्यों कोई चीज़ डूब जा रहा है, क्यों कोई चीज़ फ्लोट हो रहा है। तो वो आपसे लाइव क्लास लेंगे कल। और लाइव क्लास में आपको डायरेक्टली हम पूछेंगे कि आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकती है। तो आगे की क्लास में हम इसके कारण के बारे में डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।